And thank God for this new day in life. और प्रभु का धन्यवाद इस नए दिन के लिए जो प्रभु ने दिया है। As Brother Rajesh was sharing, it is not that person who speaks, it is what God who speaks to us. जैसे भाई ने बताया कि जो व्यक्ति जो बोलता है उसकी तरफ नहीं, लेकिन जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं उन शब्दों की ओर हम ध्यान दें। It says the word of God is a two-edged sword. It's not just a single side, but it's a two-edged sword. और प्रभु का वचन जो है दोधारी तलवार, दोनों तरफ उसकी धार है, एक तरफ नहीं है। But it goes, it pierces deeper inside, and it says it divides the heart and the soul and the spirit. और वो पूरी दोधारी तलवार इस प्रकार वो भेदता है ताकि जो आत्मा है और प्राण है उसके बीच बीच में वो अंतर करता है। Thing is, God, when we come, I take this as my personal learning. और मैं व्यक्तिगत रूप से इसको जो हम सीखते हैं उसको हम देखते हैं। That I come to Sunday, for meetings, but meeting is not just for coming, a meeting and sitting here and listening to something, going back again. और हम रविवार को यहाँ पर सभा में आते हैं, रविवार को यहाँ पर आते, केवल हम सुनते, सुनकर यहाँ से वापस जाते, उतना ही ना होने पाए। There are many, if we go back and we listen, there are many times we listen about forgiveness, we hear about love, we hear many things. बहुत सारे संदेशों को भी हम सुनते हैं, हम माफी के बारे में सुनते हैं, हम प्रेम के बारे में सुनते हैं। I've been that, I see, last time it was the same thing is said now again. और जैसे मैं भी इसको करते आया हूँ कि जो पिछली बार सुना था, हाँ वही मैं सुन रहा हूँ। But God, He always likes to refresh our spirits. लेकिन परमेश्वर हमारी आत्मा को ताज़ा करना चाहता है। When Jesus says, the Holy Spirit will remind you of the things that are spoken to you. यीशु कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हें उन बातों को स्मरण दिलाएगा जो यीशु मसीह ने कहा God है। knows what our want is, the further week that we are going to face, He knows what we has planned for us. और परमेश्वर जानता है हमारी जरूरत क्या है, वो भी जानता है कि क्या उसने हमारे लिए योजना बनाई है। And let God give us a heart that when we come, for meetings, our hearts be really for Him. Like God, we come here today, we come with our needs. You are going to one who is going to fulfill us. और जब हम प्रभु के सम्मुख सभा में आते हैं, प्रभु हम हमारी जरूरत के साथ इस सभा में बैठे हैं, प्रभु तू इन सारी जरूरतों को पूरा करेगा। That each day that nearness there is there with Him. और प्रतिदिन हम उसके और नजदीक आते जाते हैं। Yeah. So I was thinking about this verse in 1 John chapter 2. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, It starts from 15 and 16. It says, do not love the world nor things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. और पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 वचन, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। It says about the love of the Father, but when it comes down, it says, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but it is from the world. और 16 वचन में कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से है, पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। The third part says boastful pride of life. और यहाँ पे लिखा है जीविका का घमंड या जीवन का घमंड, जो बढ़ाई करता है। I was thinking, what is boastful pride of life? और ये बढ़ाई करने वाला जीवन का घमंड क्या है? First it says boastful. Boasting is something that is not about you're boasting something out. You're saying something. और यहाँ पर बढ़ाई करना मतलब ये दिखाता है कि हम कुछ ना कुछ बढ़ाई कर रहे हैं। And third part is given as life, boastful pride and then life. और वहाँ पे लिखा है या बढ़ाई करने वाला और जीविका का घमंड, जीवन का घमंड। This God has given us one life. परमेश्वर ने हमें एक जीवन दिया है। It is not that I am generated, like they say the Big Bang theory. That is all wrong. But God has given me a life. He has put that breath in me. और वो बिग बैंग थियरी में जैसे हम ऐसे ही बन गए हैं, कुछ होने के द्वारा नहीं, परमेश्वर ने हमको बनाया है। He has put that breath, that. और हमारे अंदर श्वास को डाला है परमेश्वर ने। And when I have that life, how do I live that life? और ये जीवन जब मेरे पास होता है तो इस जीवन को मैं कैसे जीवन को जीता हूँ? I live because I think I am great. Everything is done because of me. और मैं ये सोचता हूँ कि हाँ मैं बहुत ही महान हूँ, सब कुछ जो हो रहा है वो मेरे कारण से हो रहा It है। happens because of me. ये मेरे कारण ही हो रहा And है all things are done by me. और ये मेरे द्वारा हो रहा है। And I forget God and put Him on the side. But
thing is, I become more important. और मैं परमेश्वर को साइड में रख देता हूँ और मैं स्वयं को बहुत ही महत्वपूर्ण सोचने लग जाता हूँ। There's one more verse, if you go to Proverbs 6 और नीति वचन 6 अध्याय, and verse 16 onwards, नीति वचन 6:16 वचन से आगे it says about the 6 things the Lord hates. वहाँ लिखा है 6 वस्तुओं से परमेश्वर बैर And रखता है it says, yes, 7 are abomination to him. और 7 है जिनसे वह घृणा करता है। First, it says, is a proud look or a haughty eyes. और पहला जो लिखा है 17 वचन में, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, Second is a lying tongue. झूठ बोलने वाली जीभ, Hands that shed innocent blood. निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, A heart that devises wicked plans. अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन, Feet that are running, that are swift in running to evil. और बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, A false witness who speaks lies. झूठ बोलने वाले साक्षी, And one who sows discords among brethren. और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। I was meditating on this verse, like it first says about a proud look or haughty eyes, the person who is proud. और यहाँ पर पहली चीज जो लिखी गई है सूची के अंदर, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंडी मनुष्य। I think just then there's a category of one, but later on there are certain categories given down, like a lying tongue or hands of innocent blood and all that. और यहाँ पर अलग अलग वर्ग के लोगों के बारे में पहले शुरुआत होती है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, और उसके बाद लहू बहाने वाले हाथ और कल्पना, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन, उनकी सूची है। But in a second, God is thinking, it's not, it's all is linked. A proud person can always speak lies. और यहाँ पर सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो घमंड से भरा हुआ व्यक्ति होता है वो हमेशा झूठ बोलता है। Example is Satan. और सबसे उदाहरण जो है शैतान, He is the father of lies. और वो झूठों का पिता है। Hands that shed blood. और यहाँ पर जो लिखा है कि जो निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, An example of Cain and Abel. काइन और हाबिल, Because God didn't accept Cain, there was pride. Why didn't God accept my sacrifice? और क्योंकि परमेश्वर ने केन के बलिदान को ग्रहण नहीं किया और इसके कारण वो घमंड से भर जाता है, क्यों परमेश्वर ने मेरे उस बलिदान को ग्रहण नहीं किया। That pride went to murder. और उस घमंड के कारण वो हत्या करता है। A heart that devises wicked plans. और अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला जो मन है। Every verse, if you go and if you just meditate, every verse will see is all these things can a person do. और यहाँ पर जो सारी चीजें जो वचन में लिखी गई है, सारी सूची में जो ये एक व्यक्ति करता है, And all starts with pride. ये सारा जो लिखा गया है वो सब कुछ घमंड से आरंभ होता है। Even when Satan was made the highest priest, he was the person who should lead the angels for, for worshipping and God. जब शैतान जो था उसके पहले जो परमेश्वर का एक दूत था और अन्य स्वर्गदूतों की वो अगुवाई करता था परमेश्वर की आराधना करने के He लिए, used to sing praises to God. वो परमेश्वर की आराधना करता था। And when he fell because of pride. और घमंड के कारण जब वो नीचे गिर जाता है, So I was thinking, like, if Satan could go, do such a thing, come down, where do I stand? और जब शैतान इस प्रकार से नीचे गिर जाता है तो मैं कहाँ पर खड़ा होता हूँ। I was thinking of pride, like first when I was speaking about, like Satan. और घमंड के बारे में जब हम बात करते हैं शैतान के संबंध में, We'll go to Isaiah chapter 14. और यशाया उसका 14 अध्याय, उसका 14 वचन, यशाया उसका 14 वचन। वो शैतान कहता है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। Read this verse, like it speaks about Satan. The first verse that it says, the first line says, "But you said in your heart." और पहला जो यहाँ पर वो लिखता है कि उसने अपने मन में, अपने हृदय में इस प्रकार कहा, I will ascend to heaven. मैं स्वर्ग के ऊपर चढ़ूंगा। It all didn't start like in a physical activity, but it all started in the heart. और ये बाहरी कोई एक्टिविटी या गतिविधि के साथ नहीं हुआ, लेकिन सारी आरंभ जो उसके मन में होता है। Pride starts from the heart. घमंड जो है हमारे हृदय से आरंभ शुरुआत होता है। I can put that little seed of that, pride. It will grow. और जब हम एक घमंड का एक बीज हमारे अंदर बोते हैं तो वो बढ़ने लगता है। He says, then he later says, like Satan wants to go
above the stars. He wants to go above God. He wants to sit on the throne of God. और यहाँ पर वो सिंहासन को परमेश्वर के तारागणों से अधिक ऊपर करना चाहता है, वो ऊंचे और ऊपर चढ़ना चाहता है। He was with God, but he had that pride in his heart. परमेश्वर के साथ वो था, लेकिन उसके हृदय में घमंड था। The best part of God has given everybody a free will. Even from the angels to everybody, a free will is given to them. और परमेश्वर ने हर व्यक्ति को एक आजाद इच्छा शक्ति दी है। Even in Lucifer's case, God had given him a free will. और लूसीफर ये शैतान के संबंध में भी उसको एक आजाद इच्छा शक्ति दी गई थी, But he chose to fall in pride. लेकिन उसने चुनाव किया कि घमंड के कारण वो नीचे गिरा जाए, Because he wanted that position to be like God. क्योंकि उस पद को चाहता था जहां वो परमेश्वर के समान बनना चाहता था। Second, you read about Nebuchadnezzar, हम नबूकदनेस्सर राजा के बारे में पढ़ते हैं, pride of power. और वहां पे सामर्थ का एक घमंड उसके अंदर आ गया। You read Daniel chapter 4, दानियल उसका चौथा अध्याय, verse 28. उसका 4:28. 28 वचन, दानियल 4:28। You can read it. ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने बीतने पर जब वह बाबेल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब कहने लगा, क्या यह बड़ा बाबेल नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? So we'll see, like Nebuchadnezzar was first, he, one minute, I'll change the version of it. He had a vision of this tree and he didn't know exactly what it was. And Daniel, he told him about what the vision was. और उसको एक सपना आता है नबूकदनेस्सर, और उस सपने को, उस दर्शन को दानियल को बताता है। And the later part, Daniel told Nebuchadnezzar, that you, one minute, because you repent and you be good to the poor. One minute, it is same verse, no, Daniel? 4. Pardon? 4. Yeah. See here you see, read verse chapter 4, verse 27 says, so king, please accept my voice, stop sinning and do what is right. और 27 वचन में दानियल इस प्रकार कहता है, हे राजा, मेरी यह सम्मति है, स्वीकार कर यदि तू पाप छोड़कर धार्मिकता करने लगे, Stop doing bad things and be kind to the poor people. और अधर्म को छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, Then you might be continue to be successful. संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। When he had told him the vision, he also warned him, like this is going to happen, but you change your life. Stop sinning, you pay heed to your life. और वो स्वप्न का अर्थ बताने के बाद दानियल उससे कहता है कि तुझे पाप करना बंद करना है और पूरी तरह से धार्मिकता के काम को करना है। He listened to it and there was a period of 12 months. और वहां पर उसको सुनता है दानियल की उस सम्मति को, और उसके बाद 12 महीने का समय बीतता है। And then after 12 months, when he is standing at his balcony on the top of this palace, and when he sees all his kingdom, then he thinks, I have done all these things. और 12 महीने बीतने के बाद जब राजभवन के छत पर टहल रहता है, फिर वो कहता है, सब कुछ देखने के बाद ये सब बाबेल मैंने अपने सामर्थ्य और बल से बनाया है। I have done this, all this riches I have brought, this army I have built. And when that I came in between, that is the time, God made that thing happen. और वो कहता है कि देखो, मैंने कितनी बड़ी एक सेना को खड़ा किया है, ये सारी धन संपत्ति को जो मैंने खड़ा किया है, और मैंपन उसके अंदर जब वो मैं आता है तब परमेश्वर उससे व्यवहार करना आरंभ करता है। 7 years he was like an animal. और वहां पर 7 साल वो एक जानवर के जैसा, पशु के समान बन जाता है, Eating grass. और वो वहां के जो घास खाने लग जाता He है, is out of his mind. और अपने मन से पूरी तरह से आपे से बाहर, समझ से बाहर हो जाता है। Like 1 year to repent. That's again 1 year to repent, and 7 years he was punished. 1 साल उसको दिया गया था मन फिराने के लिए, लेकिन नहीं मन फिराया, उसके कारण 7 साल वो दंड को भोगता है। Because that 1 year he thought, each day went off, he thought nothing happened. और 1 साल जब उसको दिया गया था, हर दिन बीतता गया, उसने सोचा कुछ भी तो नहीं हो रहा है। But one day, that day came when he was judged for that pride of his. लेकिन वहां पर उस एक दिन जब आता है जहां उस घमंड के कारण उसका न्याय किया जाता है। Like there's a verse in Isaiah 2 verse 12. और यशायाह 2 उसका 12 वचन,
it speaks that the Lord all powerful has a special day planned when he'll punish the proud and the boastful people. 2:12. और यशा 2:12, क्योंकि सेनाओं के परमेश्वर का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। Like there's a day, when God waits, और एक दिन आता है जहां परमेश्वर इंतजार करता है he'll give us chances to change. और हमें वो अवसर पर अवसर देते जाता है कि हम बदले। But if I don't change, the day planned for that. और लेकिन यदि हम नहीं बदलते तो उस दिन के लिए एक दिन ठहराया जाता है। There's one verse in John 9:39. और यूहन्ना 9:31, Jesus said, यीशु I मसीह came कहता into है, this world so that the world could be judged. I came so that people who are blind could see, and I came so that the people who think they see would become blind. और माफ करना, यूहन्ना 9:39 वचन, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वे देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। Look, the one verse, says like, Jesus says, I've come to judge the world. और वह इस वचन में कहता है, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं। Judge is not exactly, I was thinking about not judge that he'll see that what is wrong and just punish me, but here he says, if I see myself, he'll judge me, he will see, then he'll give me a chance to change also. और ये ऐसा न्याय नहीं है कि मेरे अंदर कभी भी वो कुछ गलत देखता है तुरंत मेरा न्याय करेगा, लेकिन वो अवसर मुझको देता है ताकि मैं उसके पास उससे मन फिरा सकूं। That's why he says, I came to the people who are blind, they could see. और वहां पे लिखा है, जो अंधे लोग उनके पास में आए ताकि वे देख सके। And the people who can see, like who can know the things about them, if they don't listen to them, I can come to make them blind. और जो लोग देखते हैं, इसका मतलब जो अपने बारे में सोचते हैं लेकिन वो अंधे हैं, उनको वे अंधा करेगा। If we read 2 Thessalonians, it's given over there. There are certain group of people who didn't accept the truth. और दूसरे थिस्सलुनीके के कुछ वर्ग के लोग हैं जिन्होंने सत्य का स्वीकार नहीं किया। And it says God allowed a deluding spirit upon them that they believed that what is wrong, what is not right. परमेश्वर वहां पर भरमाने वाली आत्मा उन पर डालता है ताकि सत्य पर वो भरोसा या उस पर विश्वास न कर सके। People who God will speak to us, but if I don't listen, God will allow me to believe in the wrong things. और जब मैं उन बातों पर जब मुझसे कही जाती उस पर मैं नहीं मानता हूँ, उस पर मैं नहीं अनुसरण करता हूँ, तब जब परमेश्वर उस भरमाने वाली आत्मा को अनुमति देता है। If I feel I am righteous, but when I am not, and if I don't listen, God will allow. Okay, you are righteous. You believe it is. और जब मैं सोचता हूँ कि हाँ तो मैं धर्मी हूँ, लेकिन वास्तव में मैं धर्मी नहीं हूँ, तो परमेश्वर उसकी अनुमति देगा मेरे जीवन के अंदर भरमाए जाने की। If I think I am really right in my workplace or whatever, and then I am wrong and I don't believe it, I don't take it rightly, God will allow. और काम के जगह पर मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत ही सही हूँ, लेकिन वास्तव में गलत होता हूँ, तो शायद मैं उस पर नहीं मानकर वो परमेश्वर उस बात को छोड़ देगा ताकि हम उसमें गलत हो। Bible and the word of God is not for just changing us, but the word of God is to bring us near to Him. और परमेश्वर का वचन केवल हमने बदलने के लिए नहीं, लेकिन उसके बाद उसके नजदीक लाने के लिए है। I listened to Brother Zach's message. It was on childlike faith on God. और भाई जैक का एक संदेश मैं सुन रहा था, जहां मैं सुन रहा था कि एक बच्चे के समान विश्वास होना उसके संबंध में। There was one place when Jesus said about Brother was sharing about when the lady was caught in adultery, was going to be stoned. और जहां पर उस स्त्री के बारे में वो बताते हैं, जहां पर जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उन लोग उस पर पत्थरवाह करने वाले थे। And they came to Jesus and said, well, as per the law of Moses, she has to be stoned because for the adultery she is committed. और उस स्त्री को वहां पर लाकर यीशु मसीह से कहा जाता है कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के ऊपर हम पथराव करके उसको मारते हैं। No, brother saying, think about Jesus. Jesus he is God. And when the law of Moses was given, it was given through him. और आप सोच के देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर वहां पर था, और जब मूसा की व्यवस्था दी गई थी उस समय उसके द्वारा वो व्यवस्था दी गई थी। And it says when they asked him this question, he waited for some time and he was writing something on the ground. और जब एक प्रश्न उसको पूछा गया यीशु मसीह से, तो इंतजार करके थोड़ा सा जमीन पर कुछ लिखने लगता है। And he was showing as if he had not heard them.
और इस प्रकार दिखाता है जैसे उसने उसको उनको सुनाई नहीं है। But in that moment, he might be speaking to God. God, we made this. We have given this laws, but now you have given me a thing that I am going to change what was given earlier and bring it that new love for you. और वहां पर वो जो पहले दिया गया था व्यवस्था, प्रभु उसको बदल कर प्रभु प्रेम से प्रभु भरना चाहता है। Like thing is, like same law was given, and now it's come to a time when God is also tested. और वहां पर वही व्यवस्था जो पहले दी गई थी, अब वो परीक्षा वहां पर जा रही है। But when Jesus is, He is a Lord of comfort. लेकिन यीशु कहता है वो सांत्वना देने वाला परमेश्वर He is है a God of love. और वो प्रेम का परमेश्वर है। And he only changed it by one word. He said, "Let the first person who has not sinned throw the stone." और वो कहता है जिस व्यक्ति ने पाप नहीं किया वो पहला व्यक्ति वहां पर वो पत्थर मारे। No, but nobody could throw a stone. और वहां पर कोई पत्थरबार नहीं कर पाया। But things that like situations happen, but happen because we should change. और परिस्थिति इसलिए होती है ताकि हम वहां पर बदले। Like you are also sharing one more thing about about a small child. और एक छोटे बच्चे के बारे में बांट रहे थे। Saying when you pinch a small child a day earlier, और एक दिन पहले यदि किसी छोटे बच्चे को आपने चिमटी भरा हो तो, and next day you again go and meet that small child. और दूसरे दिन जब आप उसी बच्चे को मिलने जाते हो, He'll forget, that you have pinched him, but he'll again, that small child will be smiling and will be ready to come to you. वो छोटा बच्चा मुस्कुराता है आपकी तरफ, वो आता है, वो पूरी तरह से पिछले दिन की जो बात है वो भूल जाता है। God wants us to be that like that innocent children. और उसी निर्दोष बच्चों के समान परमेश्वर चाहता है कि हम भी बने। But if you come to this part again, if somebody does something wrong to me, my pride is so high, I want that person's case to be taken. और वहां पर जब भी कोई व्यक्ति आता है और मेरे साथ गलत करता है और मेरे अंदर घमंड के कारण मैं उसके साथ कुछ व्यवहार करना चाहता हूँ। It's easy to judge another person. बहुत आसान होता है अन्य लोगों का न्याय करना। But when it comes to my own life, it is very hard to judge my own self. लेकिन जब मेरे जीवन के संबंध में बात आती है तो बड़ा कठिन हो जाता है अपने जीवन का न्याय करना। For example, I'll taking my own self. अपने खुद के जीवन के बारे में बात करता हूँ। My earlier boss, he left. Some new person is there as their interim position as a boss. और एक जो पहले मेरे जो बॉस थे वो वहाँ पर चले गए, अभी दूसरे बॉस जो है वो आ गए। Between there's so many clashes. Like boss, she doesn't know what how the work should be done and all that. और वो जो मेरी बॉस है उसको नहीं पता है कि कैसे सारी चीजें, बहुत सारे संघर्ष होते हैं, उनको नहीं पता है कैसे चीजों को करते हैं। But the tussle was because it was not the lady or the work she done. It was because of pride inside me, because I know everything. और क्योंकि वो वहां पर संघर्ष इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो स्त्री जो मेरी बॉस जो है उसको नहीं आता है या उसको नहीं पता है, वो इसलिए था क्योंकि मेरे अंदर एक घमंड था ये कि मुझे सब कुछ आता है। The things should happen this way only. और चीजों को, कामों को इसी रीति से किया जाना चाहिए। For second part at home. और घर के अंदर So it sometimes like sisters very drastic. Like last night, I had gone out to hospital and come back home, and mom was like little uneasy, feeling uneasy. और मेरी माँ को थोड़ा अनइजीनेस फील हो रहा था तो हम लोग बाहर मैं हॉस्पिटल जाके वापस आया कल। And she was disturbed. Said, come fast home, and something और serious वो happened. तुरंत ही वो थोड़ा से डिस्टर्ब हो रहे थे कि तो आप जल्दी घर पर आ जाओ। But no, as when I was speaking back to her, I was saying, a little stern, just keep quiet. You don't know what is happening. I'll come there and all that. और मैं थोड़ा सा उन शब्दों के अंदर बात करा, तो मैं नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं आ जाता हूँ। Why? Because that pride inside me. Okay, it was the way should have said was different, but when I spoke to her, I was a little stern. और जब जिस प्रकार मुझे बात करना चाहिए उस प्रकार मैंने बात नहीं किया, लेकिन थोड़ा उन क्रोध या उन कठोर शब्दों के साथ मैंने बात की। Why? Because I have that pride in me. क्यों मैंने इस प्रकार क्यों बात किया? क्योंकि मेरे अंदर एक घमंड था, Because I know everything. क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। Can be examples like parents to a children. और माता पिता और बच्चों के संबंध के अंदर भी उदाहरण हो सकता है। Disciplining the children is not easy. So और बच्चों को अनुशासित करना ये कई बार आसान नहीं होता है। because I have seen in my life how I was when my parents used to scold me and the way I was. So और मैं अपने आप को देखता हूँ कि जब मैं था तब मेरे माता पिता किस प्रकार मुझको डांटते थे या मुझे अनुशासित करते थे। but when a parent also, it can be kind. I know how to discipline children. I'll discipline them. क्योंकि मुझे लगता है माता पिता के रूप में कि हाँ, मुझको पता है कि बच्चों को कैसे अनुशासित किया जाता है और मैं करूँगा इसको। So in every area, every place, I can just sit and ask God, to
help us to first judge our own selves, how we live, और how we हर are. जगह पर हर स्थान के अंदर ऐसे परमेश्वर हम अपने आप का न्याय करके प्रभु से कह सकते हैं, इस क्षेत्र के अंदर प्रभु हमें बताए। There's this verse in James 4, और याकूब की पत्री 4 अध्याय um, verse 6 onwards. 6 वचन से आगे It speaks about it says, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर नम्रों पर अनुग्रह करता है। If I'm a proud person, God can't help me. Nothing can happen in my life. और घमंडी यदि मैं व्यक्ति हूँ, अभिमान से भरा हुआ, तो मैं परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर मेरी सहायता नहीं कर सकता। If I go in humility to Him, यदि नम्रता के साथ मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ, speak about my weaknesses, अपनी निर्बलता को प्रभु के सामने बोलता हूँ I can submit my life total to Him, और पूरी तरह से अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर सकता हूँ, then that work can start. और तब वो काम मेरे जीवन में आरंभ होगा। Later on it says, submit therefore to God. और इसलिए वहां पे लिखा है कि परमेश्वर के अधीन इसलिए हो जाओ। Submit is not submit myself, just go and sit and just confess and go, but submit totally. First is I confess, I listen and I work on it. और ऐसे ही मतलब अधीनता में नहीं आना, लेकिन अपने आप के पूरी तरह से मान लेना और सुनना और पूरी तरह से समर्पण करना। One more thing is resist the devil and he'll free from you. और आगे वो लिखा है कि हम शैतान का सामना करें तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। And the best part is says, draw near to God and he'll draw near to you. 8 वचन में परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। This first speaks about being humble. Second is resisting the devil, submitting ourselves to God. Then resisting the devil, and third coming closer to God. और पहले नम्रता के बारे में कहता है, फिर उसके बाद शैतान का सामना करने के बारे में, और तीसरी परमेश्वर के निकट आने के बारे में। Like these things are more important. ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। If you think like how can I draw near to God? हम सोच सकते कैसे मैं परमेश्वर के और नजदीक आ सकता हूँ। Listening to the word of God, प्रभु के वचन को सुनने के द्वारा, applying it to our life. हमारे जीवन में लागू करने के द्वारा। Like when you say sin is not sin, but sin is more deadly. और पाप ये पाप नहीं, लेकिन बहुत ही मृत्यु की अवस्था में हमको लाने वाला होता है, We खतरनाक। have got is one life. और हमको केवल एक जीवन दिया है। When it comes to thinking about my sins or many things that happen, there are many verses you can speak about and many references to give about. But it's not the references, it's not verses, it's the work that happens in my life. और जब हम पाप के संबंध में वचन को के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहां पर हम पाप के संबंध में वचन को खोज सकते हैं, लेकिन वो वचन केवल नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो कार्य कर रहा है वो है। If I want humility, I can go to Google and find 25-30 verses on humility. और किसी नम्रता के ऊपर मुझे यदि वचन चाहिए तो गूगल के ऊपर मैं 25 से 30 वचन को मैं आसानी से If I प्राप्त कर go सकता for हूँ। love, I can find 25-30 verses on love. और उसी प्रकार प्रेम के संबंध में बहुत सारे वचन को मैं ढूंढ सकता हूँ। But that when I go to God and ask His help to change my life, that one verse from God can change my life. लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाकर कहते प्रभु तुम मेरे जीवन को बदल, तब एक वचन परमेश्वर की ओर से जीवन को बदल सकता है। Because the word of God has got life. और परमेश्वर के जीवन के वचन के अंदर एक जीवन है। May God really help us to listen to Him. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि सच में हम उसको सुन सके। Can really be like little children who can go to Him at any time. और उस छोटे बच्चे के समान हम बने जो हर समय किसी भी समय परमेश्वर के नजदीक जा सकते We हैं। can find Him like that precious pearl, और हम परमेश्वर को उस मूल्यवान मोती को प्राप्त करने के समान पा सकते हैं। like that precious stone, और वो मूल्यवान पत्थर जो है that we sell our everything, जिससे कि हम अपना सब कुछ बेचकर, not just everything, but everything. और कुछ चीजें नहीं लेकिन सारी चीजों को बेचकर, That life of God can be manifested in our lives. ताकि परमेश्वर का जीवन हमारे जीवन में प्रदर्शित हो सके। May God really help us. प्रभु हमारी सहायता करे।